जी। हाँ हाँ हाँ, मैं भरत बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हम्म। जी जी। हाँ सर। Good morning, sir. Good morning, all of you. How are you? Fine, sir. Okay. So today we are going to discuss very important topic, that is unconventional metal forming. Okay. आप ये मुझे बताइए कि आपको शीट मेटल से कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। कोई डाउट है बेटा? आपको स्प्रिंग बैक इफेक्ट समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. डाई सेट साइज, how to calculate the die set size in the case of sheet metal processing. सभी को समझ में आ गया है डाई सेट साइज निकालना? चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट टॉपिक of this module, which is a, am I audible? क्या मेरे को Yes, sir. आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके ओके। ठीक है। You can see now we are going to discuss the unconventional metal forming, which is also known as the non-traditional forming process and HERF process, high energy rate forming. Now the question is, why we are calling all these operations high energy rate forming? Please remember, the common name in the industry is HERF। कि भाई ये process HERF है या नहीं है? So the high energy rate forming process includes the involvement of extremely high velocity and very high pressure in order to form the material. Okay, is it clear what I'm trying to say? Because in the case of unconventional metal forming, there is rarely you will find direct solid to solid contact. Okay, but in the case of unconventional metal forming, we utilize the high, or we can say the extremely high velocity
of the strike and very high pressure in order to form the material in the desired shape. Okay, in your exam there may be a question, what do you mean by the HERF? So you have to remember, in the case of HERF we utilize very high velocity and high pressure in order to deform the material. So in this process we use the impact energy, high impact energy, impact load, in order to deform the material in the desired shape. Okay, so these process are comes under the category of non-conventional, or we can say the non-traditional forming process. So in this we can say chapter, we have the three process which are important. First one is the explosive advanced metal forming. The second is electrohydraulic, electrohydraulic, and the third one is the electromagnetic. Okay, so these are the very important name in the advanced metal forming process. First is explosive, second is electrohydraulic, and third is electromagnetic. Now you can see the in explosive forming what we do actually. You can see this explosive forming by this diagram. So the first technique is a standoff technique. So we explode the explosive material in the water, and due to the explosion the shock wave generate, which travels towards the workpiece and form the desired shape. ये आपको समझ में आया what I'm trying to say? देखिए जो ये जो टेक्निक है बहुत ही थिन शीट के लिए यूज की जाती हैं और बहुत रेयरली यूज की जाती हैं, जहां पर अगर सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट बिल्कुल ही मना है कि आप नहीं, सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, इस तरह का मटेरियल आप डील कर रहे हैं, देन यू कैन यूटिलाइज दिस explosive forming process. So what we do actually in this process, we place the workpiece with the die in the water. So the workpiece and die completely submerged in the water, and we place the explosive near to the workpiece and we explode. Once this explosion done, you can see here, am I audible? नंबर ये तो सर आपने कल बता दिया था। अच्छा ये बता दिए सारा? ये सर ये भी बता दिया था, और इसके बाद वो कार्टेज वाला भी बता दिया था, और उसके बाद ओके ओके, अच्छा ये कार्टेज वाला भी हो गया है, समझ में आ गया सभी को? मुझे लगा सेक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है कभी हाँ, कभी। बस यहीं से बताना है सर। हाँ नहीं, इसको पहले ये समझ में आ गया आपको एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, इसके बाद में इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक समझिए। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक में क्या होता है इस प्रोसेस में, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपको लिखवाने के लिए आता है ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक में हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास में एमसीक्यू रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग में हम कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? Electrical energy as well as the hydraulic energy, because we are creating the hydraulic pressure of the fluid so that this fluid strikes onto the workpiece and we can achieve the desired forming. So in the case of electrohydraulic forming, what we are doing, we are taking a very thin metal wire and we are using a supply, very high supply, with the help of capacitor bank. And once we switched on the supply, this thin metal wire get burned and explode. And due to the very high current, or we can say the high supply, high potential difference, then what will happen? This burning results into the shock formation. Okay, and this shock travels towards the workpiece and we achieve the desired forming. And please remember, we do the vacuum in all the dies. You can see here we are also creating a vacuum from the die so that the material properly stick to the die. इसमें कोई आपको डाउट हो तो पूछिए। So what is the major limitation of this process? Anyone? What is the major limitation?
सर वही होगा सर, थिन मेटल प्लेट ही कर सकते हैं इससे। हाँ, थिन मेटल तो प्लेट कर water से सकते कोई हैं, चीज जो करोड़ ना हो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज, हम लोग लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर यस सर। ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा, आप तभी उसको उस पार्ट को उसमें अकोमोडेट करा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में होता है, ईबीएम में, ईबीडब्ल्यू में, कि वैक्यूम में हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हमें ज्यादा वैक्यूम मतलब आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा वर्क आपको देना पड़ेगा, ज्यादा आपका खर्चा होगा। सो सेम थिंग विद दिस इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग। अगर आप इसकी और सर ये पावर सप्लाई भी बहुत ज्यादा लेती है। हाँ, अगर सर थ्योरी इसका थ्योरी पावर बैंक का वो सॉरी ये कैपेसिटर बैंक जो है, तो उसका वोल्टेज कितना रहता है सर? वोल्टेज बहुत हाई रहता है इसमें, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। एज पर द थिकनेस ऑफ द शीट वी चेंज द वोल्टेज कैपेसिटी। सर मुझे एक बार कैपेसिटेंस जानना था उसका, क्योंकि सर जो मैग्नेटाइजर्स होते हैं उसमें जो कैपेसिटर बैंक लगा होता है उसमें 450 वोल्ट का, और कैपेसिटेंस जो होता है वो मुझे जानना है सर, क्योंकि वो सेम कैपेसिटर बैंक मेरे ख्याल से इसमें भी यूज हुआ है। हाँ, कैपेसिटर बैंक ही हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो सर उसका थ्योरी कैपेसिटेंस देखिए, जस्ट वेट। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फार्मिंग, also known as the electro spark forming, is a process in which the electrical energy is converted into the mechanical energy for the forming of metallic parts. A bank of capacitors is first charged to a very high voltage and then discharged across a gap between the two electrodes, okay, causing the explosion inside the hollow workpiece, okay, which is filled with some suitable medium, generally water. These explosion produces shock wave that travel radially in all the direction at high velocity until they meet some obstruction. If the discharge energy is sufficiently high, the hollow workpiece is deformed. You can see here, this is the simple work, we can say the working principle of this electrohydraulic forming. Now this is a one, we can say, simple diagram. यहां से आपको समझ में आ गया होगा. So we have the capacitor bank of having very, capacitor bank क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत सारे हम सीरीज में लगा रहे हैं बैंक, मतलब बैंक का मतलब यही हो गया कैपेसिटर्स को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम उसमें सप्लाई दे सकें. ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए. ये लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें दो तरह की एनर्जी हम यूज करते हैं. पहली कौन सी है? इलेक्ट्रिकल, और दूसरी हाइड्रोलिक एनर्जी, या सिंपली हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी. सर इसका कैपेसिटेंस ही जानना है मुझे बस। कैपेसिटेंस मैं समझा नहीं. सर जो कैपेसिटर बैंक है उसका सर टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, सर मतलब फैराडे में? नहीं, ये तो मेरी ना कितना थिकनेस है, क्या है, वो सर एक तय रहता है ना सर, मुझे ये जानना है रेंज क्या रहती है, मिली आपके रहती है या माइक्रो रहती है? नहीं, मिली में रहेगी, माइक्रो नहीं रहेगी, मिली रहेगी. मिली। हाँ, माइक्रो तो ओके। बहुत कम हो जाएगा. दूसरा तीसरा जो प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग क्या है? ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज करता है. अगर आपको ध्यान हो, हम लोग क्या करते हैं, कॉयल को जो भी वर्क पीस, और ये क्या होता है, इंप्रेशन बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है. ये बहुत ही एडवांस प्रोसेस है. मान लीजिए आपको किसी भी ट्यूब में कुछ इंप्रेशंस आपको मान लीजिए डालना है, देन व्हाट वी डू एक्चुअली, वी wrap the coils and we switched on the supply currents, we can say the electrical supply. Then what will happen, due to the magnetic field, the two repulsive forces act onto the workpiece, and due to that repulsion forces, we achieve the we can say the final forming. Okay, so you can see the working principle. The principle of electromagnetic forming: consider a tubular workpiece. This workpiece is placed near or a coil. A high charging voltage is supplied for a short time to a bank of capacitors connected in the parallel. The amount of electrical energy stored in the bank can be increased either by adding capacitor to bank or by increasing the voltage.
So you can see the electrical supply can be added or can be subtracted based upon the we can say the thickness of the material and the type of the material. So this capacitor we can say is only used to give the power supply to the workpiece. When the charging is complete, which takes very little time, a high voltage switch triggers the stored electrical energy through the coil. Once we switched on, then what will happen? The high electrical energy will flow through the coil. A high intensity of magnetic field is established, which induces the eddy current into the conductive workpiece, okay, resulting in the establishment of another magnetic field. If you remember, if we place if a current carrying conductor placed in between a magnetic field, it induces another current that is known as the eddy current, and that eddy current has its own magnetic field, because each and every current has its own magnetic field. And if these two magnetic fields are come closer and they repulse each other, and due to this repulsive forces, what will happen? There will be an impression onto the material or impression onto the tubes. So this process is mainly used for the tubular objects, okay, tubular workpiece. So you can see the forces produced by the two magnetic fields opposes each other, with the consequence that there is a repelling force between the coil and the tubular workpiece that causes the permanent deformation of the workpiece. So there is a very simple phenomena of electromagnetic field और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग. ये आपको समझ में आया कैसे हो रहा है? Yes, sir. बताइए, who will explain this again? आकाश, you would. आकाश, आप इसको बताइए कैसे हो रहा है? वो एक वर्क पीस होता है ट्यूबुलर फॉर्म का, उसके ऊपर हम लोग जब वायर को मतलब कॉइल रैप कर देते हैं, उसके हैं, बाद में पावर सप्लाई ऑन करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? तो उसके बाद फिर कॉइल के वायर में और वर्कपीस में जब रिपल्सन होता है, जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, उसके कारण उस पे एक इंप्रेशन टाइप क्रिएट नहीं, वो रिपल्सन बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है. मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहे हैं, आप बताइए नंदी. सर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके एकदम सडन चेंज की वजह से एडी करंट जनरेट होते हैं सरफेस ऑफ द वर्कपीस, और वो एडी करंट जो होते हैं वो जनरेट करते हैं अपोजिट रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होती है कॉइल्स में, जिसकी वजह से जो रिपेलिंग फोर्स है वो डेंट्स क्रिएट करते हैं. जो भी हमारा नीचे डाई लगी हुई है सिलेंड्रिकल वर्कपीस के नीचे, उसी के हिसाब से, और सेम गैप को वो रिपेलिंग फोर्स की वजह से वर्कपीस अडॉप्ट कर लेता है और हमारी डिजायर्ड शेप मिल जाती है. वेरी गुड. देखिए, मैं बता रहा हूं एक बार, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें अगर लिखवाने के लिए आता है, कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसमें जो हमें रिपेलिंग फोर्स मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड, just because of the two magnetic field. Now the question is how we can achieve the two magnetic field. एक फील्ड तो वो जो आपने मान लीजिए सप्लाई ऑन की, स्विच अपना जैसे सप्लाई की, there is a flow of current and due to that there will be a we can say the magnetic field, and that magnetic field if is आपको पता है, if current conducting coil is placed in between the we can say as per the Lorentz law, अगर आपको ध्यान हो कि अगर कोई कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? इट इंड्यूसेस ए एडी करंट, LDI by dt करंट, और उस एडी करंट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो दीस बोथ मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस रिपेलिंग फोर्सेस द ट्यूबुलर वर्कपीस डिफॉर्म्ड एज पर द डिजायर्ड वी कैन से शेप. ओके, सो हियर यू कैन सी ये इंटरनल भी हो सकता है. इंटरनल मान लीजिए आपको बल्जिंग करनी है, ये कोलैप्सिंग करनी है. सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन डू द बल्जिंग एज वेल एज द कोलैप्सिंग ऑपरेशन. ओके, अगर आप आउटर लगा रहे हैं तो कोलैप्सिंग होगा ट्यूब्स का, और अगर आप इनर इंटरनली आप उन कॉइल्स को लगा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ए बल्जिंग ऑपरेशन. ओके, और वी कैन सी द एनलार्जमेंट ऑफ द ट्यूब्स. सो दीज आर द non-traditional methods of metal forming. So we have finished this. Now we have the last topic, that is powder metallurgy, or the production of products with the help of we can say powder metallurgy.
Now I'm going to show you regarding this powder metallurgy. Then just wait. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, just wait. So before going to start what is the process of powder metallurgy? ये बहुत important है समझना. देखिए ये एक रूट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का. हम लोग क्या करते हैं इसमें पाउडर मेटलर्जी में या पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सिंटरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको. वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ पाउडर्स. आपने कास्टिंग में देखा कि हम कास्टिंग में लिक्विड मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं. अब लिक्विड स्टेट में लेके जाते हैं प्रोडक्ट को और सॉरी रॉ मटेरियल को, then we pour into the cavity and we achieve the final desired shape. But in the case of powder metallurgy, we use the powders, very fine powders of the material which is to be produced. Okay, then there are some steps in the powder metallurgy. The first one is the powder production. The first step, you can write all these we can say steps. First is the powder production. The second is pouring of powder production in the pre-decided cavity. Okay, the second is step is, or sometimes we use the addition of some additives in the we can say the powder in order to increase the green strength of the materials. What is the green strength? I will tell you. Okay, I will share the PPT, no need to worry. I have prepared the PPT for this powder metallurgy and I will upload it. I will upload onto your, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पाउडर मेटलर्जी, कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं पाउडर मेटलर्जी से. तो आपको अभी तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं समझ में आ रहा है? बोलिए. Yes, sir. ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पाउडर प्रोडक्शन करते हैं. कि आपके पास में मान लीजिए रॉ मटेरियल है, कुछ सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं. तो पाउडर में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. अब क्या क्या तरीके हैं? जैसे एटोमाइजेशन, एक टेक्निक है एटोमाइजेशन. आप कहेंगे कि सर एटोमाइजेशन क्या है? हम क्या करते हैं, लिक्विड को और सॉरी सॉलिड को, जो भी आपके पास में रॉ मटेरियल है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट करके एक नोजल से स्प्रे कराते हैं. एक नोजल से स्प्रे कराते हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्स पे या कहीं सरफेस पे. तो उससे जो स्प्रे होगा मटेरियल तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एक तो ये मेथड हो गया, इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन. दूसरा है मैकेनिकल पल्वराइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल को एक कंटेनर में डाल दिया और उसमें बॉल मिलिंग डाल दी, बॉल डाल दी.
मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ही हार्ड मेटेलिक बॉल्स हमने उसमें डाल दी, इसको बॉल मिलिंग भी बोलते हैं, बॉल मिलिंग प्रोसेस, और उसको हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये पाउडर प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं। आपने रॉ मटेरियल या हार्ड मटेरियल आपको उसमें डाल दिया और कुछ बॉल्स ली, बॉल्स को डाल दिया और हाई स्पीड से उसको पूरे कंटेनर को रोटेट कराया। देन व्हाट विल हैपन? These balls are strikes to the workpiece and convert into the, we can say, the lower size of the grains, and we achieve the final powder. Or this process continues. We put the material continuously and we are producing the powder continuously. So these are the some methods of powder production. Powder production करने के बाद में हम कुछ additives डालते हैं उसके अंदर, मटेरियल के अंदर, जिससे जो पाउडर है उनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, एक दूसरे से वी कैन से द कोहेसिवनेस और एडहेसिवनेस इंक्रीज हो जाए। ओके, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द एडिशन ऑफ एडिटिव्स, और उसके बहुत सारी लिस्ट है एडिटिव्स की। ओके, एज पर द मटेरियल वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स। The third step is very important, that is compaction process. We compress the powder into the desired shape. जो डाई रहती है या जो मोल्ड रहता है उसमें हमने पाउडर को रख दिया और फिर हाई प्रेशर के साथ में उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद में हम उस प्रोडक्ट को बाहर इजेक्ट कर लेते हैं और जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट। याद रहेगा ये नाम? इस पे आपको हो सकता है कि क्वेश्चन मिल जाए। ग्रीन कॉम्पैक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट, एक बार फिर से बता प्रोडक्ट दीजिए। आफ्टर द कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन कॉम्पैक्ट। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए ग्रीन कॉम्पैक्ट? क्योंकि अभी वो ग्रीन है, अभी प्रॉपरली स्ट्रेंथ नहीं आई है उसमें। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, जो हम लोग ईंट वगैरह का, अगर ईंट प्रोसेसिंग, जो ब्रिक प्रोसेसिंग देखी हो कहीं पे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको हम कंप्रेस करके एक डाई मोल्ड बना के बनाते हैं, वो ग्रीन होती है, ग्रीन आपका प्रोडक्ट होता है। फिर हम लोग उसको बेकिंग के लिए भेजते हैं, तब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ना। तो वैसा ही यहां पर है, पहले हम ग्रीन कॉम्पैक्ट बनाते हैं, देन वी सेंड दिस ग्रीन कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट फॉर द सिंटरिंग ऑपरेशन। Sintering is what? In sintering, we heat up the green compact up to the 80 to 90% of its melting point. Please remember this thing, what I'm trying to say. हम लोग सिंटरिंग में कितने परसेंट तक हीट करते हैं? 80 to 90 90% उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उतना तक। मान लीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम उसको 900 डिग्री तक हीट करते हैं, और उससे क्या होता है, उसकी जो भी अंदर की वॉइड्स होती हैं, जो पोरोसिटी होती है, जो भी डिफेक्ट होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होके प्रॉपरली बेक हो जाता है, एंड वी सेंड इट फॉर द सेकेंडरी ऑपरेशंस लाइक मशीनिंग और द फाइनल शेप। सो दिस इज ए काइंड ऑफ, वी कैन से, द पाउडर मेटलर्जी, नथिंग मोर देन दैट। थोड़ा बहुत अगर आपको क्लियर हुआ हो तो मेरे को बोलिए, आई कैन स्टार्ट दिस वीडियो। ये थोड़ा बहुत Yes, sir. आपको? सर, हाँ, यस सर, क्लियर है। ओके, अब इसको देखिए। हाँ, अब देखिए, वीडियो देखिए। ये देखो, ये आपका मोल्ड है, ये क्या बनाया जा रहा है? इससे गियर्स बनाए जा रहे हैं। ये गियर का मोल्ड है, ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? ये जो अगर हम देखें इसको यहाँ पे, अरे यार ये स्टार्ट ही हो गया। ओके, ये हुपर है जिससे हम, जो पाउडर है, ये पाउडर है, ये पाउडर दिख रहा है आपको? ये पाउडर है जिस भी मटेरियल का आपको बनाना है, इसके थ्रू हम लोग इसमें पोर कराएंगे। देन देयर विल बी ए कंप्रेसिव, वी कैन से, काइंड ऑफ अरेंजमेंट, एंड वी कंप्रेस दिस, वी कैन से, दिस पाउडर दैट विल गिव यू द ग्रीन कॉम्पैक्ट। नाउ यू कैन सी द वीडियो। यस सर। अगर आपको वॉल्यूम ना आए तो मुझे बोलिएगा। Process starts with a metal powder. Other alloys can be added into the mix to give different properties to the finished product. The powder is first poured into a feed ram. The feed ram will move across the die Now opening it and is filling. deposit the powder into the die. Next,
The compression ram compresses the metal powder to form the shape of the part. A substantial force is needed to press the metal powder into one piece. The compressed part is then ejected and moved away by the feed ram. Material for the next round of pressing is simultaneously added into the die. And a new cycle begins. The cycle repeats to create identical compressed parts for the sintering stage. The next stage usually takes place in a belt conveyor furnace. The compressed parts are heated to a very high temperature, which fuses, or sinters the metal into a solid piece. This process can take up to several days. The parts are cooled slowly to prevent oxidation and defects. After that, the finished parts are ready. Thank you for watching. समझ में आए या मैं इसको रिपीट करूं? नो सर, आ गया। आ गया सर, आ गया। सर वो समझ में नहीं आया सर, जो डाई था वो कैसे उसके अंदर कंप्रेस करके कैसे काम कर रहा है? कंप्रेस करके उसमें नीचे सिस्टम लगा रखा है इस तरह का ऑटोमेटिक कि वो उसको पुश करेगा ऊपर। ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए। सर वो तो रॉ मटेरियल है, तो वो तो सर पूरा ही डिफॉर्म हो जाएगा, तो कैसे कह रहे हैं? कैसे कैसे मैं समझा नहीं बेटा, मुझे बताओ। सर जैसे वो तो पाउडर फॉर्म है ये जो है। हाँ, ये पाउडर है and we are adding some additives, I have already told you, and once we compress it, then what will happen, these powder comes closer and they start making the bonding, mechanical bonding. Yes, this bond is not having the proper strength, that's why we are requiring the sintering operation. Naman, यस सर, पर थोड़ा ये समझने में थोड़ा मेरे को ये एक्चुअली क्या चीज समझ में नहीं आई मेरे को बताइए। सर ये इसमें हमें पता है कि फैन ये जो है पाउडर फॉर्म इसके अंदर फिल कर दिया, देन ये हाँ। कंप्रेस किया, तो ये कंप्रेस करने पे सर ये इसके अंदर मतलब क्या सिस्टम है, इसके नीचे जो नीचे कंप्रेस हो रहा है वो, या मतलब ये डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये मतलब खराब क्यों नहीं हो रहा है? खराब क्यों नहीं? थोड़ा जैसे हम देखेंगे सर, किसी कंटेनर हमने कोई सैंड फिल करी, देन हमने उसमें कंप्रेस करा और ऊपर निकाला, तो वहाँ एक तरह से सर वही जो डाई होती है उस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ तो सर ये चीज हो नहीं रही है पूरा ही। नहीं, वही तो हो रही है, डाई है भाई, ये फिल किया हुआ है, इसको कंप्रेस कर रहे हो आप। कंप्रेस करने पे ये फाइनल जो भी इसके ग्रेन्स हैं पाउडर के, वो एक दूसरे से पास में आ रहे हैं, मतलब। और ये देख, मैं एक चीज आपको बताऊं, चलिए, आपके क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, लॉजिक वाले होते हैं, लेकिन उनको मुझे समझा पाना एक अपने आप में, देखिए, नहीं ये तो समझ में तो आ रहा है, पर कोई बात हजम नहीं, कोई नहीं हो बात रहा है। नहीं दोस्त, कोई बात नहीं दोस्त। यहाँ पे लिखो स्ट्रेंथ और यहाँ पे लिखो कॉम्पैक्शन प्रेशर। जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन प्रेशर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? कॉम्पैक्शन का क्या मतलब है? और अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, द एटॉमिक डिस्टेंसेस बिटवीन दी grains of, we can say, the powder, then this will decrease the, we can say, here you can see by increasing the compaction pressure, here you can see the pressure and the distance between the grain size of any we can say the atom, then it is start when you increase the pressure. Is it clear? This is the distance between the what, the two we can say the particle of the powder. Is it clear? सर एक बार दोबारा बताइए, डी वर्सेस पी का जो सर नेटवर्क ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्त, ये समझ में आया? स्ट्रेंथ वर्सेस कॉम्पैक्शन, जितना आप हाई प्रेशर से कॉम्पैक्ट करोगे उतने ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ग्रीन कॉम्पैक्ट की। एक तो ये केस है। दूसरा केस मैंने बताया आपको कि जो डिस्टेंसेस होती हैं, जैसे बहुत सारे पाउडर बना हुआ है, यहाँ पे पाउडर है, इनके बीच में ये डिस्टेंसेस है ना, और ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना हमारे लिए खतरनाक है, हमारी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जितनी मतलब ये डिस्टेंस जितनी मिनिमाइज हो जाएगी हमारे लिए उतना अच्छा है। और वो कब पॉसिबल है? अगर हम ये देखें, कंप्रेशन ज्यादा होगा, कॉम्पैक्शन प्रोसेस या कंप्रेशन जो प्रेशर है, जितना आप बढ़ाएंगे तो ये डिस्टेंस उतनी ही डिक्रीज होगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा उतना ही बेनिफिट होगा सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। और ये इसमें ऐसा नहीं है
कि हमें एटॉमिक बॉन्डिंग मिल रही है, मैकेनिकल बॉन्डिंग मिलती है, लेकिन एटॉमिक बॉन्डिंग के लिए हम सिंटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर, हमें तो क्या हो रहा है कि दोनों जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से के कांटेक्ट में आ रहे हैं और एक दूसरे से अटैच हो जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि हम एडिटिव यूज करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब कॉम्पैक्ट करने के बाद में जब बाहर निकालते हैं प्रोडक्ट को, तो वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है पार्ट, तो वो किसके कारण, अगर देयर इज अ लेस कोहेसिवनेस बिटवीन द एटम्स, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कोहेसिवनेस, what we do actually, we add some additives between the powder. Okay, so here you can see, और आप अगर इसके वीडियोस देखेंगे, और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे YouTube पे, तो सर ग्रिड साइज क्या होता है पाउडर का? हाँ जी, ग्रिड साइज कितना होता है पाउडर का? ग्रिड साइज, ग्रेन साइज मैं बता सकता हूं, ग्रेन साइज वी टेक अप टू 100 mm to 3 to 4 micron, that is the approximate grain size of the, 100 mm तो सर बहुत बड़ा हो गया सर ग्रेन साइज। हाँ, बहुत, कई बार हमारा बहुत mm तक लेते हैं हम लोग, सर 100 लेकिन mm तो 10 सेंटीमीटर ये देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जो हमारी ये बॉल मिलिंग प्रोसेस है, ये माइक्रोन में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, या तो हमें बहुत ही ज्यादा मतलब फाइन ग्रेन अगर स्ट्रक्चर चाहिए तो हमें एटोमाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। आई हैव सीन लॉट मेनी प्रोडक्ट विच इज मेड बाय, और एमएमसी मैंने देखा है जो लिटरेचर में, कि वो उन्होंने 100 क्या नाम है 1 mm से लेके मतलब मैक्रो पाउडर लिया है, माइक्रो पाउडर लिया है, और उनकी स्टडी की है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बनाए। और ये इसमें फायदा क्या है, पाउडर मेटलर्जी में फायदा क्या है, कोई मुझे बता सकता है? आप कहेंगे कि सर हमारे पास में इतने अच्छे अच्छे मेथड हैं, कास्टिंग है, देन व्हाई वी आर गोइंग विद दिस पाउडर मेटलर्जी? जो हमें डिजायर्ड शेप चाहिए होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। दूसरा, आपको मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए रीइंफोर्सिंग एजेंट्स इसमें मिक्स करने हैं, वो इजीली आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, पाउडर में मिक्स कर सकते हैं और उस पाउडर को आप यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, देखो मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको इसके, सिंटर्ड, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, हाउ टू प्रोड्यूस कन्वेंशनल प्रेशर सिंटर पाउडर मेटलर्जी, यहां इसको देख सकते हैं। सर इसमें डिफेक्ट जो होते हैं सर, डिफेक्ट नहीं मिलते हैं सर, ऐसे एयर ट्रैपिंग ये तो डिफेक्ट हुआ या structure that results from. However, the result grains like this one, microscope, a similar piece of steel looks 100 units. It's in a needle-like structure forms. It's still harder than it was. ओके, इसमें प्रोसेस ने इसके मेटलर्जिकल जो एस्पेक्ट है उसको बताया है। What is conventional press and sinter powder metallurgy? To a typical iron powder, through a tundish and hit with metals such as copper, unit volume, and density compaction. And you can see the green component that's formed. Compaction establishes the density of the powder metal compact. In this graphic, you can see a powder particle, and you can see the deformation that occurs in compaction. This video is So visible to what's you? really happening in the compacting Yes, sir. process of deformation is 7 and They are talking area about of the contact. deformation in the grains. And Many this is times the by effect compaction, of density on many the times these mechanical grains properties get deformed. moved So we in do the deloop EBSD zone analysis and at other approximately analysis 1350 and degrees SAM-TAM F analysis in in a order to protect see the grain compact is structure. stabilized step in the PM process. During the sintering, we see here you can see the effect of density on mechanical properties or parts with very good So wear you can see the properties. complex So parts we can be increase manufactured carbon by this strength. powder metallurgy process. Microstructure, the area of the particle-to-particle bond. Sintering welds the powder particles together, and the alloy तो आपको दिख composition रहा है, and ये heat अपना treatment further determine the ये strength of the particles. जा रहे हैं। Let's take a look at some PM applications. Here we have a notch and pocket plate that are used in हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं?
सर जो हमारी वर्कशॉप में एक कंप्रेसिव पंचिंग मशीन लगी हुई है जो, बिल्कुल। तो उसमें अगर हम डाई फिट करके और कंप्रेसिव वाला एरिया नीचे बनाए तो उतना कंप्रेस आप स्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, स्लॉटिंग मशीन की? हाँ सर, जो वर्टिकली मूवमेंट दे रही है जो, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, टेबल को मैकेनाइज करना पड़ेगा। टेबल को जैसे मान लीजिए या तो आप उसको किस तरह से प्रोडक्ट को हटाना है, क्योंकि एक बार कंप्रेस कर दिया नीचे, आप कर सकते हो ये काम। हमारे पास कितना हमें प्रेशर जनरेट वर्टिकल मूवमेंट है। हाँ जी नंदी, हमें कितना प्रेशर जनरेट करना होगा उसके लिए, उतना हो पाएगा उसमें? कॉम्पैक्शन के लिए एटलीस्ट यू हैव टू अप्लाई 50 to 100 megapascal. That pressure you can easily obtain from this machine. Okay. The issue is how to yes, you can develop the dye. Dye आप develop कर सकते हैं, ठीक है। पाउडर आप खरीद के ला सकते हैं। पाउडर आप ऐसा भी नहीं है कि हमें भाई अब खुद प्रोडक्शन करना है, क्योंकि डाई तो सर हम 3D प्रिंटर जो लगाया वहां से निकाल के प्रोडक्ट से बना नहीं यार, वहां से तो नहीं मिलेगा। आप पाउडर प्लास्टिक की मिल डाई जाते हैं मार्केट से। ओके, तो सर आपको आप पाउडर्स देखिए, जो होते हैं वो if you want to develop a new alloy, okay, based on powder metallurgy, then you can develop, you can mix the correct proportion of other alloying elements with this we can say the matrix, and you can mix it and you can develop the new product, okay, new alloy. the powder are expensive then आपकी आवाज नहीं आ रही नंदी। मेटल वो जो ओर से निकलते हैं उससे। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर पाउडर जो होते हैं वो महंगे होते हैं क्या? उससे जो सॉलिड मिलता है हमें मटेरियल? हाँ, उससे थोड़ा महंगा होता है। उससे थोड़ा महंगा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, क्योंकि या तो बॉल मिलिंग या एटमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उन लोगों ने बनाया होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो रीइंफोर्सिंग एजेंट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप, तो हमारे पास ऐसा है कोई ऑपरेटर जो मतलब बना सके पाउडर को? और इसमें अच्छी पाउडर बनाने के लिए है हमारे पास कोई मशीन? नहीं, पाउडर बनाने के लिए हमारे पास में कोई सेटअप नहीं है। पाउडर बनाने के लिए तो यार बहुत, इवन आईआईटीज में भी नहीं है। हाँ सर, वो तो सर ये वो स्पेशलाइज फैक्ट्री होती है, स्पेशलाइज कंपनी होती है जो पाउडर प्रोडक्शन करती हैं। ओके सर। हाँ सर, एंड सर जो ये रिएजेंट्स यूज होते हैं स्ट्रेंथ बनाने के लिए कोहेसिव, वो कौन से होते हैं सर? इसमें देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपका पाउडर माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील के लिए हम मुझे याद नहीं आ रहा, कैवॉल करके एडिटिव्स आते हैं, CA मेरे पास में नाम है, काफी सारे और एडिटिव्स रहते हैं इनके, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स वी आर यूजिंग फॉर दैट। एल्युमिनियम के लिए अलग हम लोग यूज करते हैं, माइल्ड स्टील के लिए अलग यूज करते हैं, जिससे कि वो, अगर हम मान लीजिए कोई भी एडिटिव्स यूज कर रहे हैं किसी भी पाउडर में, तो वो रिएक्शन ना दे। ऐसा ना हो कि मान लीजिए रिएक्शन करके वो इंटरमेटेलिक कंपाउंड बना ले अंदर। अगर अंदर इंटरमेटेलिक कंपाउंड बना लेगा और मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ आपके मैट्रिक्स से कम है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए पूरा एक हैंडबुक रहती है, मेरे पास में है, और उसमें लिखा रहता है कि आपको इसके लिए इतना एडिटिव्स और कितने ग्राम हमें यूज करना है। वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी, एक बार में कितने पाउडर आप पाउडर यूज कर रहे हो कैविटी में। So we have finished this. We can say the metal, or we can say the module 2. और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं और इसको आपको बताऊंगा पाउडर मेटलर्जी के बारे में। अगर आप और कोई डाउट हो आपका, अभी कुछ पूछना हो तो पूछिए आप। सर इसमें ये पूछ रहा था सर, पाउडर जो, बोलिए सर पाउडर फिलिंग जो कास्टिंग है, इसमें सर डिफेक्ट नहीं होता है सर?
इसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। ट्रैप्ड हो जाती होगी या सबसे बड़ा डिफेक्ट तो जो वॉइड्स रह जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हमें हमें पता है कि हम इतने 100% परफेक्ट नहीं है कि कॉम्पेक्शन करने से सारे जो वॉइड्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वॉइड रह जाता है। तो इसीलिए तो पाउडर मेटलर्जी बहुत रेयरली यूज होती है। और वो कहाँ पे यूज होती है कि जहां पे स्ट्रेंथ कोई मतलब नहीं है, कि ऐसा जगह हमें प्रोडक्ट यूज करना है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप और किसी प्रोसेस से बनाओगे तो बड़ा डिफिकल्ट है, उसकी मशीनिंग डिफिकल्ट है। एक्चुअली इसमें पाउडर मेटलर्जी में अच्छी बात क्या है, आपको मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको जो सरफेस मिलेगी वो स्मूथ मिलेगी एंड इन कंपैरिजन टू कास्टिंग। जैसे कास्टिंग में क्या है कि भाई कास्टिंग में तो अल्टीमेटली आपको मशीनिंग करनी ही पड़ेगी, उसको सरफेस को स्मूथ करना ही पड़ेगा, लेकिन पाउडर मेटलर्जी में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है तो कैसे करोगे उसकी मशीनिंग, या तो लेथ भी हाथ खड़े कर देती है, सीएनसी भी हाथ खड़े कर देती है, वीएमसी अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर मेटलर्जी यूज कर लेते हैं कि भाई जब स्ट्रेंथ हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है देन वी कैन यूज इट। अगर जहां पर हम ऐसे कंपोनेंट कभी हम नहीं बनाते कि रेलवे में यूज कर रहे हैं या डिफेंस में, कोई ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है कि हम वहां पे पाउडर मेटलर्जी के कंपोनेंट यूज करते हैं। नंदी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, एक डाउट और है सर। सर यस, जो हमारा रिएजेंट है उसको एंड में एडिटिव्स हैं जो जब हम एंड में हीट करते हैं तो वो एस्केप कर जाते हैं या फिर बिल्कुल मटेरियल के बिल्कुल, साथ हाँ। ही वो? नहीं नहीं नहीं, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए उसके अंदर वो मेटेलिक भाई वो तो हमारा पार्ट नहीं था ना, वो तो एक अलग से हम फॉरन वो कुछ डाल रहे हैं। तो यही तो है कि सिंटरिंग हम इसीलिए करते हैं कि जो भी एडिटिव्स है वो रिमूव हो जाए और जो बॉन्डिंग है, जो पहले मैकेनिकल बॉन्डिंग थी, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग अगर उसको 90% या 80% पे हीट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा उसमें, जो पाउडर पार्टिकल्स है उनके बीच में बॉन्डिंग का कौन सा प्रोसेस होगा, कोई बता सकता है? हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन। आप लोग बोलते मतलब ये ध्यान रखिए, डिफ्यूजन प्रोसेस कब होता है, when the two components are in contact and we are raising the temperature and also we are applying some pressure. Yes, we have already applied the pressure in order to make closer. Now when we heat up the specimen above the, we can say, recrystallization temperature up to 80-90% of its melting point, then diffusion process takes place, and due to this diffusion that there will be a diffusion bonding between the atoms. Okay, so we have 11:52. सर? So we have another lecture. सर So फिर thank भी you. एक चीज और सर, बस बोलिए। एक चीज और Yes. सर, जब हमारा सिंस अब वो एक्सकेप कर चुका है सर, मटेरियल जितना भी था जो नहीं रिक्वायर है, और जो हमारी डाई थी उससे अब सर मटेरियल कम हो गया है, तो मतलब जो हमने बनाया था उससे मटेरियल कम हो गया है, और तो उसकी वजह से हमारी शेप में जो चेंजेस आएंगे नहीं आते हैं। मतलब हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है नंदी कि सिंटरिंग में कुछ न कुछ डायमेंशंस का रिडक्शन होता है, बहुत बहुत माइन्यूट परसेंट, लेकिन दिस परसेंट इज सिग्निफिकेंट, लाइक 5 to 10%. So in this case, what we do actually, same with the allowances, we take the allowances. Suppose the dimension is 10 by 10, then we may add some allowances for the centering, like 1 mm or 2 mm, depending upon the type of material and the process. Nandi. तो सर हम सिंस हम पहले जब कास्टिंग होती है तो उसमें तो हमें मालूम है सर, दो तरीके रहते हैं सर, कि हमारा सुको ड्राई मेटल, पर लेकिन इसमें तो सर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा हर जगह पे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप जब मान लीजिए कोई ग्रीन कॉम्पैक्ट है, आप ये करके देखिएगा और उसको 80 से 90% तक हीट करोगे तो उसमें उसके अंदर मतलब जो, क्योंकि हो क्या रहा है, जो वॉइड्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे से, तो कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है उसके अंदर और वो बहुत माइन्यूट होता है। लेकिन अगर हम बहुत ही प्रिसीजन में काम कर रहे हैं देन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, वी हैव टू ऐड सम अलाउंसेस। ओके सर, Thank you. थैंक यू सर, We'll see you in the next class.
Thank you so much.